Good evening, everyone. Welcome back to your own channel, Scientia. I am Simran. As per your voting, we will start Master Cadre Physics preparation. Master Cadre Physics. हाँ जी, सब तो पहला आप जो यूनिट स्टार्ट करनी है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो सब तो ਲੈਂਥੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ. ਕਲੀਅਰ. ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟ ਏ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲਸ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ. ਕਲੀਅਰ. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਿਕਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਉਂਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਾਰਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਕਲੀਅਰ. ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਸਕੇਲਰ ਐਂਡ ਵੈਕਟਰਸ. ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ +1 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ 9th 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਕੇਲਰਸ ਐਂਡ ਵੈਕਟਰਸ. ਕਲੀਅਰ. ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਕੇਲਰਸ ਐਂਡ ਵੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਓਨਲੀ ਕੋਈ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਸ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਾਸ, ਡੈਂਸਿਟੀ, ਵੋਲਿਊਮ, ਵਰਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੇਲਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਕਲੀਅਰ. ਐਂਡ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਵੈਕਟਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੀਨਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਯੂਨਿਟ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਕਟਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੀਡ ਬਾਈ ਟਾਈਮ. ਕਲੀਅਰ. ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਵੈਕਟਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਸਪੀਡ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਯੂਨਿਟ ਵੀ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੋਰਸ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਫੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੁੱਲ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੁਸ਼ ਜਾਂ ਪੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕਲੀਅਰ. ਵੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ. ਅਗਰ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਰੋ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ. ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਫੋਰਸ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਐਫ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਐਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ. ਕਲੀਅਰ. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰਸ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਮੀਨਸ ਐਰੋ ਹੈਡ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਰੋ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ ਏ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ. ਕਲੀਅਰ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ. ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਕਟਰ ਲਿਖ ਲਓ ਇਕੱਲਾ. ਹਾਂਜੀ, ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੈਕਟਰਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਬਟ ਜੋ ਵੈਕਟਰ ਹੈ
उसनों आपां किस दे नाल डिवाइड करते हैं, उसके मैगनीट्यूड के नाल, उसके मैगनीट्यूड के नाल या आपां कहिए उसकी वैल्यू के नाल, तो वह अपने कोल की बन जाता है, यूनिट वैक्टर बन जाता है। मान लो कोई भी अपने कोल ए है, ठीक है जी, अगर इसका यूनिट वैक्टर निकालना है तो किस तरीके नाल करांगे आपां, ए दे उपर जो वैक्टर मीनस जो डायरैक्शन शो कर रहा आपां नूं, इसनूं आपां किस दे नाल डिवाइड करांगे, इस दे मैगनीट्यूड दे नाल। मैगनीट्यूड नूं आपां सिंपल ए दे नाल भी लिख सकते हैं या इस तरीके दे नाल भी लिख सकते हैं, मीनस उसके मैगनीट्यूड दे नाल भी उसनूं शो किया जाता है, उसकी नोटेशन इस तरीके नाल भी है, तो तुसीं कुछ भी लिख सकते हो। इस प्रॉपर नूं जो यूनिट वैक्टर है वो किस तरीके नाल लिखते हैं, ए दे उपर हल्का जिहा कैप लगाया जाता है, इसनूं आपां की लिखते हैं, यूनिट वैक्टर। की कहना है, यूनिट वैक्टर। यह की अपने को मैगनीट्यूड है, ए दा की अपने को मैगनीट्यूड वैल्यू आ जाती है। क्लीयर, ये बेसिक चीज़ां सी। हुण इस चीज़ नूं जो आपां वैक्टर लगाने आ, इसनूं आपां कहने आ टेल, और जिस साइड एरो है उसनूं की बोलते हैं आपां हैड। क्लीयर, टेल एंड हैड, ये सिंपल जिहियां चीज़ां ने, तुसीं BSc की स्टार्टिंग दे विच की है पढ़ लैंदे हो। क्लीयर, ये मैथेमैटिकल नोटेशनस ने जो आपां डिस्कस कीतियां, किद्दां ए वैक्टर नूं किद्दां लिखोगे, हुण अगर आ जाए ए एंड ए दा यूनिट वैक्टर जो आपां कैप लगा देंगे। क्लीयर, इस ते आपां फिर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ भी लगदियां ने, जिद्दां एडिशन ऑफ वैक्टर्स किद्दां करदे हैं आपां, या रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है वो भी एडिशन दे नाल हुंदा, प्रोडक्ट किद्दां करदे हैं, बहुत सारिया बेसिक चीज़ां है, बट आपां इन्ना बेसिक भी नहीं करना क्योंकि ये सब तुहानूं पता हुंदा सबट्रैक्शन किद्दां करी दी है। क्लीयर, हुण आपां जो नैक्सट जो अपना टॉपिक है उसनूं करांगे स्केलर फील्ड एंड वैक्टर फील्ड, क्योंकि मैं पहला ही तुहानूं तां दस्सिया सो दैट तुहानूं अगे दी चीज़ क्लीयर हो जाए, क्योंकि जो नैक्सट अपना टॉपिक है सिलेबस दे विच मैंशन है स्केलर फील्ड एंड वैक्टर्स फील्ड, स्केलर्स एंड वैक्टर फील्ड। सब तो पहला आपां गल करांगे स्केलर फील्ड दी। देखो स्केलर फील्ड की हुंदा है, स्केलर फील्ड का मतलब है कोई भी रीजन है एक स्पेस दे विच, स्पेस दे विच कोई रीजन है, रीजन का मतलब हुंदा है कोई भी एरिया है। क्लीयर, उस दे विच जो एक स्केलर क्वांटिटी का मतलब है एक यूनीक वैल्यू होगी हर पॉइंट की, हर पॉइंट ते की होएगी एक यूनीक वैल्यू होएगी। हुण स्केलर का मतलब आपां नूं डायरैक्शन नहीं पता, मैगनीट्यूड शो कर रहे हैं, आ जिन्ने भी पॉइंट है इन्हां दी की है एक यूनीक वैल्यू होगी एक फील्ड दे विच, उसनूं आपां की बोल दिंदे आ, स्केलर फील्ड बोल दिंदे आ। क्लीयर, चाहो तो मैं तुहानूं डेफिनेशन भी करवा दिंदी आ, बट इसकी ज़रूरत नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी देखो वेरी करती है, जो अपनी ना फिजिकल क्वांटिटी होंदी है, फिजिकल क्वांटिटी ये अपनी की करती है, वेरी करती है, मतलब चेंज होंदी रहती है पॉइंट टू पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये की होंदी रहती है, वेरी करती रहती है, चेंज करती रहती है। इसलिए मैं कह रही हाँ कि जो स्केलर फील्ड दे विच जो भी एरिया अपने कोल फील्ड है उस दे विच की है सारियां की होणगियां यूनीक वैल्यूज़ होणगियां हरेक पॉइंट की। इदा नहीं है कि दो पॉइंट्स की जो वैल्यू है अपने कोल सेम आ जूगी, नो, सब दी की होगी अलग अलग वैल्यू होगी। क्लीयर, जिद्दां हुण आपां वी लै लैंदे आ, इलैक्ट्रिक पोटैंशियल वी, तो मान लो अपने कोल 3 पॉइंट है XYZ, आपां 3 ही लैके चलते हैं 3 डिमेंशनल दे विच। ठीक है जी, तो वी एक की अपने कोल सिंबल है, किस दा सिंबल है अपने कोल, फिजिकल क्वांटिटी है जो इलैक्ट्रिक पोटैंशियल नूं की कर रही है, रिप्रजेंट कर रही है। XYZ अपने कोल कोआर्डीनेट्स होंदे है 3 डिमेंशनल दे विच, 3D दे विच आपां 3 डिमेंशनस लैके चलते हैं X Y एंड Z, एंड V अपने कोल की शो कर रहा है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पेस दे विच इस दी हर पोजीशन ते 3 डिमेंशनल दे विच X ते अलग वैल्यूज़, Y ते अलग वैल्यूज़, Z डिमेंशन ते अलग वैल्यूज़ नूं की कर रहा है, रिप्रजेंट कर रहा है, तो इसनूं आपां सिंपली VR भी लैके चल सकते हैं। क्लीयर, इस तरीके दे नाल। क्लीयर, यह की है कोई भी पोजीशन वैक्टर शो कर रहा है, एक ही है आर का मतलब की है इस टाइम पोजीशन वैक्टर, पोजीशन वैक्टर नूं की कर रहे हैं, रिप्रजेंट कर रहे हैं इन स्पेस, स्पेस के विच गल कर रहे हैं आपां। क्लीयर, मैंने 3 डिमेंशन की गल की है, तो इसका मतलब आपां स्पेस की मतलब 2D की नहीं गल कर रहे, 3D की गल कर रहे हैं, स्पेस की गल कर रहे हैं। समझ आया स्केलर फील्ड। नैक्सट आपां गल करांगे वैक्टर फील्ड की। वैक्टर फील्ड,
हाँ जी, ਵੈਕਟਰ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਫੀਲਡ ਲਗਾ ਲਓ। ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਯੂਨੀਕ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਵੈਕਟਰ ਜੋ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਯੂਨੀਕ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਕੇਲਰ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਯੂਨੀਕ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ ਕਿਸ ਦੀ, ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਗਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲਰ ਫੀਲਡ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ V ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਮੈंने ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੈਕਟਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ E ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਕਟਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। E ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ। E ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ। ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਚਾਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ। ਇਹ ਵੀ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ੋ ਕਰੂਗੀ XYZ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਵੇਟ, E ਵੈਕਟਰ ਇਹ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ R ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ। R ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਪੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਕਟਰ ਫੀਲਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲਰ ਫੀਲਡ, ਵੈਕਟਰ ਫੀਲਡ, ਸਕੇਲਰ ਤੇ ਵੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡੈਲ ਆਪਰੇਟਰ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਬਣਦੇ। ਡੈਲ ਆਪਰੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਲ ਆਪਰੇਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਡੈਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕੈਲਕੂਲਸ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ ਸਕੇਲਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਰੇਟਰ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਲ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ट्रैंगल बनानी है उल्टी नाल की बना देना ऊपर एरो जो की कर रही है ਆਪਾਂ ਨੂੰ रिप्रेजेंट किस ਨੂੰ कर रही है, डायरेक्शन ਨੂੰ, जिस ਨੂੰ ਆਪਾਂ इन्वर्टर डेल भी कह सकते हैं। की कह सकते हैं, इन्वर्टर डेल। मेनली ये ना सिंपलीफिकेशन है, जो भी आप एल्जैब्रिक ऑपरेशनस लगाने उन्होंने उपर की है एक सिंपलीफिकेशन है, मतलब उसनों किस तरीके नाल आप यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्रैशनस से लगा सकते हैं। वो स्केलर भी हो सकता है, वैक्टर भी हो सकता है। वैक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है सिंपल वेज ਦੇ ਵਿੱਚ अगर मैं गल करा। ਹੁਣ अगर इस डेल ਨੂੰ ਆਪਾਂ एक्सपेंड करिए मतलब खोलीए तो किस तरीके नाल होगा, आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स। ਹੁਣ ਇਹ पता ਤੁਹਾਨੂੰ डेरिवेटिव करते ਹੁੰਦੇ ਆ एक्स ਦੇ विद रिस्पेक्ट टू प्लस जे कैप कर्ल बाय कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल बाय कर्ल जेड। क्लियर। मतलब z एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना, वाई के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना, z के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना। क्लियर। इसनों आपां इस तरीके नाल शो करते हैं। वैसे डेल का अगर परसनली वैसे देखा जाए तो कोई मीनिंग नहीं है, बट ये एक ऑपरेटर है जो आप कित्थे कित्थे यूज़ करते हैं, स्केलर ते वैक्टर फील्ड दे विच यूज़ करते हैं। क्लियर। क्लियर। देखो हुण अगर आप गल करिए एक की इन्वॉल्व कर रहा है जो डेल ऑपरेशन है, ये 3 डायमेंशनल ਨੂੰ भी ऑपरेट कर रहा है। एक्स वाई जैड मीनस ये 3 डायमेंशन की हो रही है, अपने को गल की जा रही है, जिस दे विच आपां किसी कनैक्शन यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो स्केलर फील्ड के होण चाहे वैक्टर फील्ड के होण। जिवें हुण स्केलर फील्ड की गल करिए,
कोई भी ऑपरेटर तुसी लै सकते हो। अगर ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ u ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੈਲ u ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਡੈਲ ਇਨਵਰਟਡ ਡੈਲਟਾ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ u ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ i ਕੈਪ ਕਰਲ ਬਾਈ ਕਰਲ x ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ u ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਮਤਲਬ x ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ j ਕੈਪ ਕਰਲ ਬਾਈ ਕਰਲ y u ਪਲਸ k ਕੈਪ ਕਰਲ u ਬਾਈ ਕਰਲ z क्लीयर। इस तरीके नाल आपां इसनूं की करदे आ ऑपरेट करांगे तो यह की है जो रिजल्ट है इस ऑपरेशन का यह किस दे विच आ गया वैक्टर फील्ड दे विच आ गया। क्लीयर समझ आया। मीनस अगर आपां किसी स्केलर फील्ड फंक्शन ते ऑपरेटर लगाने किसी भी स्केलर फील्ड फंक्शन ते ऑपरेटर लगाने तो उसका जो रिजल्ट आंदा किस च आ जाता है वैक्टर फील्ड दे विच आ जाता है। ये चीज़ ध्यान च रखने वाली है मतलब कोई वैक्टर क्वांटिटी है जो स्केलर फील्ड के नाल की है जुड़ी हुई है इस दे नाल ही तुहानूं अगला ग्रेडियंट समझ आऊगा। क्लीयर। नैक्सट जो अपना टॉपिक है ग्रेडियंट ये भी तुहाडे सिलेबस दे विच की है मैंशन है तुसी चैक कर सकते हो सिलेबस तुहाडे सब कोल पहला सब तो पहली चीज़ सिलेबस होनी जरूरी है फिर ही तुसी टॉपिक्स क्लीयर कर पाओगे। ग्रेडियंट की हुंदा ग्रेडियंट किसी भी स्केलर फील्ड का हुंदा जिद्दां हुण आपां यू लिया सी ग्रेडियंट किसी भी स्केलर फील्ड का होंगे ठीक है जी जो जिसनों आप ग्रेडियंट किस तरीके नाल लिखते हैं GRAD स्मॉल। क्लीयर। स्केलर फील्ड से होंगे किसी भी पॉइंट जो की डिफाइन करते अपने को मैक्सीमम वैल्यू जो रेट ऑफ चेंज ऑफ की है स्केलर फील्ड की किसी भी फंक्शन ते एट दैट पॉइंट उसनों आपां की कह दिंदे ग्रेडियंट कह दिंदे जिद्दां ग्रेडियंट आपां हुणे यू का करके आया ना अगर उसनों लिखना हो की होगा कर्ल यू बाय कर्ल आर। देखो ये मैं की लिखा आर का मतलब किसी पोजीशन वैक्टर मतलब जो डेरीवेटिव सी तीनों 3 डिमेंशन के सी एक्स वाई एंड जेड हुण मैं इकट्ठा करके लिखता खोल के नहीं लिखा इकट्ठा करके लिखता नाल की आ जाऊगा आर कैप जो की शो करूँगा मैक्सीमम वैल्यू की रिप्रजेंट कर रहा अपने को मैक्सीमम वैल्यू तो ग्रेडियंट यू आपां की डायरैक्ट कर रहा है डायरैक्शन के नाल कितना डिस्टेंस है लैवल ऑफ सरफेस का जो कि मिनीमम है वो गल कर रहा है अपने को। क्लीयर। मतलब जो डी आर है ये अपने को की है डी आर है ये अपने को की है मिनीमम बट जो डी यू बाय डी आर है ये अपने को की हो रहा है मैक्सीमम कंसैप्ट तुसी समझ ही गए होने। ठीक है जी कोई डाउट होया प्लीज़ नाल क्लीयर कर लियो क्योंकि बाद विच फिर थोड़ा जा तुहानूं कंसैप्ट की अगे पिछे हो जाते हैं तो नाल दी नाल ये चीज़ां की करनियां ने तुसी क्लीयर करनियां ने। क्लीयर। नैक्सट आपां गल करांगे डाइवर्जेंस एंड कर्ल दी। डाइवर्जेंस एंड कर्ल सारे टॉपिक तुहाडे सिलेबस दे विच मैंशन ने एंड आपां सीक्वेंस वाइज ही कर रहे हैं तुहाडा बेसिक क्लीयर करते हुए। डाइवर्जेंस सब तो पहला आपां समझांगे डाइवर्जेंस कि डाइवर्जेंस की हुंदा कोई भी अगर आपां वैक्टर फील्ड फंक्शन दे मतलब कोई वैक्टर फील्ड फंक्शन है ई लिया सी आपां उसे नूं मैं रिपीट कर रही हूँ इस ते जो आप ऑपरेटर लगाने थ्रू मतलब स्केलर प्रोडक्ट लगाने की लगावांगे स्केलर प्रोडक्ट लगावांगे किस दे विच जदों भी आपां की करना डाइवर्जेंस करना तो स्केलर प्रोडक्ट लगावांगे या तुसी वैक्टर भी लगा सकते हो स्केलर भी अगर तो तुसी स्केलर प्रोडक्ट लगा रहे हो उसनों कह दिंदे डाइवर्जेंस अगर तुसी वैक्टर प्रोडक्ट लगा रहे हो उसनों आपां की कह दिंदे कर्ल कह दिंदे वेट उसनों आपां की कह दिंदे कर्ल कह दिंदे क्लीयर बस इन्ना फर्क है दोनों दे विच कंसैप्ट क्लीयर होया जदों भी तुसी कोई फंक्शन ते वैक्टर फील्ड फंक्शन ते ऑपरेटर लगाने हो अगर तो स्केलर प्रोडक्ट लगा रहे हो तो वह डाइवर्जेंस रिप्रजेंट करता है अगर तुसी वैक्टर प्रोडक्ट लगा रहे हो वह किस नूं रिप्रजेंट करता है कर्ल नूं रिप्रजेंट करता है। ठीक है जी हुण इन्हां नूं देखदे हां कि किस तरीके नाल बेसिकली ये ऑपरेटर्स ने किस दे वैक्टर फील्ड दे ये ऑपरेटर्स ने
ऑपरेटर्स ने किस दे जो वैक्टर फील्ड होंगी अपने को। क्लीयर, समझते हैं। सब तो पहला गल करांगे डाइवर्जेंस की। जिद्दां डाइवर्जेंस है ई ते लगा रहे हैं तो इसका मतलब की दसिया सी स्केलर। स्केलर का मतलब की होंदा डॉट प्रोडक्ट। क्लीयर, डॉट प्रोडक्ट। हुण अगर इसनूं आपां लिखिया जावे, वेट, यस, किद्दां सीगा, कर्ल बाय कर्ल एक्स किस दा कर रहे हैं आपां, ई दा, विद रिस्पैक्ट टू एक्स दा ई एक्स प्लस डेल ई वाई, सिमिलरली कर्ल बाय कर्ल जैड ई दा विद रिस्पैक्ट टू जैड। हुण इस दे नाल ही आपां एक नूमैरिकल सॉल्व करांगे सो दैट तुहाडा क्लीयर हो जाए। ठीक है जी, गिवन है आपां नूं कोई भी ए जिस दी आपां नूं वैल्यू गिवन है एक्स स्केयर वाई आई कैप प्लस एक्स माइनस वाई के कैप। हुण इसका अगर आपने डाइवर्जेंस निकालना है किसका, ए दा आपां ने की निकालना है, डाइवर्जेंस निकालना है तो आप किस तरह लिखांगे, इन्वर्टेड डेल डॉट ए वैक्टर। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया, आप डॉट प्रोडक्ट करनी है किस तरीके नाल, वो डेल का की मतलब है पहला उसनों लिख लो, आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल बाय कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल बाय कर्ल जैड। इस तरीके नाल हो गया। नाल डॉट प्रोडक्ट दे विच अपने कोल ए की है, एक्स स्केयर वाई आई कैप प्लस एक्स माइनस वाई के कैप लिख लिया। हुण डिफरेंशियल जो करना है तो आई कैप का आई नाल करना है, चीज़ ध्यान च रखनी है, जिद्दां ए दा इहदे नाल होऊगा, के कैप का के नाल। अगर जे नहीं हैगा तो इसनूं छेड़ना नहीं हैगा, इसका मतलब ये जीरो है। ठीक है जी, कोई भी चीज़ नहीं हैगी। हुण अगर आई का आपां आई नाल कदर लिखते हैं, पहला कर्ल बाय कर्ल एक्स, आई दे विच अपने कोल की है एक्स स्केयर वाई प्लस जे तो जीरो है, कर्ल बाय कर्ल जैड, जैड दे विच के कैप च की है अपने कोल एक्स माइनस वाई। क्लीयर होया। हुण इहनूं डिफरेंशियल उम्मीद है करना आंदा हो, बट मैं तुहानूं सिखा भी दिंदी हूँ किद्दां करदे आ। देखो वाई दा तां आपां कर नहीं सकते, सब तो पहला एक चीज़ का करदे आ, कर्ल एक्स का जो एक्स नाल डिफरेंशिएट करदे आ तां एक्स स्केयर दा अपने कोल की बन जांदा है 2x, 2 अगे आ जाता ना, इत्थे पावर 1 हो जाती है तो की आऊगा 2x। वाई का की लिखांगे वाई। क्लीयर। हुण ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसका मतलब प्लस कर्ल एक्स स्केयर इदा ही रह गया, कर्ल वाई इदा बनूगा, देखो मैं साइड पर लिख रहा कर्ल वाई बाय कर्ल एक्स। इसका जो करांगे तो जीरो, क्योंकि एक्स के विद रिस्पैक्ट टू करना है तो एक्स स्केयर नाल की आ गया अपना जीरो प्लस जीरो। पेन चेंज कर लिए। हुण देखो कर्ल बाय कर्ल जैड एक्स माइनस वाई है, इत्थे जैड वाली तो कोई टर्म ही नहीं, तो यह भी की बन जू अपने को जीरो, तो अपने को आंसर किया गया 2x वाई। क्लीयर। इस तरीके नाल आपां डाइवर्जेंस करना है किसी भी चीज़ का। नैक्सट अगर आप गल करिए सैकेंड जो आपने चीज़ कर रहे थे, आपां की अपने को कर्ल, कर्ल दे विच मैं की दस्सिया सी, कोई भी वैक्टर फील्ड की जदों आपां की करदे आ वैक्टर फील्ड ते वैक्टर प्रोडक्ट लगा देंगे, की लगा देंगे वैक्टर प्रोडक्ट, जिवें डेल क्रॉस ई वैक्टर। एक क्रॉस का मतलब कि आपां की कर रहे हैं, वैक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं, की कर रहे हैं वैक्टर प्रोडक्ट। जदों हुण तुसीं क्रॉस दे विच किद्दां करदे हैं, पहले तो मैगनीट्यूड लैना है, कोई भी वैल्यू नैगेटिव नहीं हुंदी इहदे विच, की आऊगा पहला उपर आई कैप जे कैप के कैप। क्लीयर। नाल की आऊगा कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल जैड, नाल क्या गया ई एक्स ई वाई ई जैड। उम्मीद है तुहानूं ये भी सॉल्व करने आंदे हैं, अगर नहीं आंदे आपां हुणे डिस्कस कर लैंदे हां। देखो एग्जाम्पल ना डिस्कस करते हैं। अपने को कोई भी अपने को ए वैक्टर गिवन है, आई थिंक आपां सेम ही ले लिए तो बेटर है, क्लीयर हो जाऊगा है ना, सिंपल भी सी, एक्स स्केयर वाई आई कैप प्लस एक्स माइनस वाई के कैप, जैड की टर्म आप लई नहीं, शॉर्ट हो जाऊगा थोड़ा जा। हुण इस ते आपां कर्ल लगाना, यदा मतलब डेल वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर, मैं सीधा टर्म्स पुट करूँगी किद्दां सी, आई कैप जे कैप के कैप, थोड़ा खुला लिखांगे,
नाल की है कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल जेड। की आ जाऊगा एक्स स्केयर वाई, आई कैप वाली इधर लिखांगे आप टर्म, जे वाली है नहीं तो जीरो, जैड वाली की अपने को एक्स माइनस वाई। हुण क्रॉस प्रोडक्ट आंदा होएगा तुहानूं करना, किद्दां करना देखो। सब तो पहला आई कैप, फिर की करते हैं आप, ये रो छोड़नी है, कॉलम छोड़नी है, तो इस तरीके नाल की हो जूगी, प्रोडक्ट हो जूगी किद्दां है, कर्ल बाय कर्ल वाई नाल की आ गया एक्स माइनस वाई, माइनस कर्ल बाय कर्ल जैड नाल की आ गया अपने को जीरो। ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। फिर सैकेंड शुरू करांगे जे कैप वाला, पेन चेंज कर लें, प्लस की आ गया जे कैप। हुण जे वाली रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, की आ गया कर्ल बाय कर्ल एक्स, एक्स माइनस वाई, ठीक है जी। चाहे इदां कर लो, कर्ल बाय कर्ल एक्स की आ गया एक्स माइनस वाई, माइनस कर्ल बाय कर्ल जेड की आ गया एक्स स्केयर वाई। क्लियर, वेट, ठीक है जी। नाल आपां हुण की लेना है, थर्ड के कैप। के कैप दे विच के कैप वाली रो एंड कॉलम छोड़ दो, की आ गया कर्ल बाय कर्ल एक्स किस दे नाल, जीरो दे नाल, माइनस कर्ल बाय कर्ल वाई की आ गया एक्स स्केयर वाई। क्लीयर हुई है टर्म। हुण देखो सिंपली सॉल्व करना है इसनों, मैं शॉर्टकट सॉल्व करूँगी बट तुहानूं एक्सप्लेन प्रॉपर हो जाऊगा। सब तो पहला की आऊगा आई कैप, कर्ल वाई दी जो मैं इस दे नाल अंदर खोलूँगी, एक्स नाल करोगे जीरो, वाई नाल करोगे की आ गया अपने को माइनस वन, कर्ल जैड दी जीरो नाल करोगे जीरो, तो इसनों आपां छोड़ सकते हैं, प्लस की आ गया अपने को जे कैप, देखो एक्स नाल करोगे वन, ठीक है जी, की आ गया वन, कर्ल जैड दी इत्थे कोई भी जैड वाली टर्म नहीं हैगी तो जीरो छोड़ दो। नैक्सट की आ गया अपने को प्लस के कैप, वेट एक्स नाल जीरो ना करोगे जीरो, वाई नाल करोगे इत्थे की आ गया अपने को माइनस एक्स स्केयर। क्लियर, तो अपने को टर्म की बन गई, वेट जस्ट अ सैकेंड, जो आप जे वाली कर रहे हैं तो ये टर्म पहले इधर आनी सी, नैगेटिव आएगी, वेट पहले ये आऊगी दैन पॉजिटिव, दैन ये अपने को आ गया नैगेटिव, समझ के प्रोडक्ट थोड़ा हो गया, तो की बन गया अपने को माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस एक्स स्केयर के कैप। ये अपने को हो गया कर्ल्स का सल्यूशन हो गया। अगर तुहानूं कोई भी न्यूमेरिकल कर्ल चाहता है तो तुसी इस तरीके नाल की करना है, सॉल्व करना है। क्लीयर, ठीक है जी, समझ आया। तो यही चीज़ां की है जो आप वैक्टर किसी ते भी लगाने आ तो अपने कोल की है अलग अलग, अगर द डाइवर्जेंस है तुसी डॉट प्रोडक्ट करोगे, अगर तुहाडे कोल की है कर्ल है तो तुसी की करोगे क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। डॉट प्रोडक्ट ते क्रॉस प्रोडक्ट तुसी +1 2 क्लास दे विच आपां की है सॉल्व करते हैं, फिजिक्स वाले तो मैथ्स सब ने किया होया तो मैथ्स दे विच आपां करते हैं, ठीक है जी। हुण अगर आपां गल करिए नैक्सट दी, तो देखो डाइवर्जेंस किसी भी वैक्टर का अगर पॉइंट है इन अ वैक्टर फील्ड तो आंसर अगर क्वेश्चन बन जाता है डाइवर्जेंस ऑफ अ वैक्टर, किसी भी वैक्टर का जो डाइवर्जेंस कर दिया कोई भी पॉइंट एट अ गिवन पॉइंट इन अ वैक्टर फील्ड, किस फील्ड दे विच, इन अ वैक्टर फील्ड, तो वह की रिजल्ट दिंदा अपना स्केलर। इदां दे कई बार क्वेश्चन बन जाते, ध्यान च रखियो, ठीक है जी। स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ तुसीं ध्यान दे विच रखोगे। अगर किसी भी वैक्टर फील्ड का मैं कर्ल कर रही हूँ, डाइवर्जेंस सीगा, अगर डाइवर्जेंस की जगह मैं कर्ल ले ला, कर्ल कर रही हूँ किसी भी वैक्टर फील्ड का, तो उसका आंसर की आंदा वैक्टर, ठीक है।
अगर तो मैं डाइवर्जेंस कर रही हाँ किसी भी वैक्टर फील्ड के वैक्टर पॉइंट का कोई गिवन पॉइंट है तो स्केलर आता है। अगर मैं कर्ल कर रही हाँ वैक्टर फील्ड का उसका की आऊगा वैक्टर आऊगा। ठीक है, ये ध्यान च रखिए। नैक्सट जो हूँ आपने टर्म करनी है मतलब जो नैक्सट है अपने को सिलेबस के वो है टाइप्स ऑफ वैक्टर फील्ड्स, टाइप्स ऑफ वैक्टर फील्ड। देखो ये मैं तां करवा रही हाँ क्योंकि ये डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन के बेसिस से ही तुहानूं क्वेश्चन आ सकता है। मेनली ये तीन टाइप्स होंदियां ने, तिने डिस्कस करते हैं। सब तो फर्स्ट है लैमिलर, वैक्टर फील्ड। हाँ जी, तो इस दे विच की है कहते कोई भी वैक्टर फील्ड ई है उसनों लैमिलर कदों किया जाता है जदों उन्होंने आप एक्सप्रैस करते हैं एज अ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। किस तरीके नाल एक्सप्रैस करते हैं एज अ ग्रेडियंट ऑफ वेट ग्रेडियंट ऑफ वैक्टर फील्ड उसनों आपां की कह दिंदे आ लैमिलर वैक्टर फील्ड। किस तरीके नाल कोई भी ई है ये किस तरीके नाल लिखा जाओ माइनस नैगेटिव इनवर्टर डेल डॉट वी। ठीक है, ये वर्ड लैमिनर तो आया हुआ है। कोई भी इलैक्ट्रिक फील्ड ई है यह की अपने को लैमिलर फील्ड है कदों जदों आपने इस ते की है ग्रेडियंट लगाता किसते कोई भी स्केलर फील्ड ते। स्केलर फील्ड कितना पता लग रहा है क्योंकि इस दे उपर आप एरो नहीं मैंशन किया। ठीक है जी, ये की है अपने को इलैक्ट्रिक पोटेंशियल है। मैं तुम्हें फर्स्ट करवाया से स्केलर की जो एग्जाम्पल करवाई सी। ये अपने को की है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आपको सिर्फ मैगनीट्यूड शो करता है, डायरैक्शन शो नहीं करता। तो इसनों आप की कह दें लैमिलर वैक्टर फील्ड कह दें। ठीक है जी, इधर लैमिनर क्यों मतलब कि ये लेयर्स के उपर होंगे। जो भी अपने को स्केलर फंक्शन है ये लेयर्स में शो करता है जिदे विच अगर आप गल करिए जो वैक्टर फील्ड से दिन है वह कॉन्सटेंट रहिंदा है, उस दे विच ज़्यादा चेंज नहीं आता। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप सी तुहाडी। सैकेंड टाइप की अपने को सोलेनोइडल। सैकेंड टाइप की अपने को सोलेनोइडल। सोलेनोइडल वैक्टर फील्ड की अगर मैं गल करा इस कोई भी वैक्टर बी है उन्होंने सोलेनोइडल उदों किया जाता है अगर उसका डाइवर्जेंस की आ जाए अपने को जीरो। अगर उसका जो डाइवर्जेंस है वो की आ जाए अपने को जीरो आ जाए तो उसको आप की कह दें सोलेनोइडल वैक्टर फील्ड कह दें। जिस तरीके नाल डेल डॉट बी डाइवर्जेंस किया सी तो अपने को डॉट प्रोडक्ट आऊगी। ध्यान च रखियो अगर ये अपने को जीरो आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इस दे बेसिस ते कई बार MCQ बने मास्टर कैडर के विच, तो उसनों आप सोलेनोइडल कह दें। हुण तुसीं पुछोगे मैम बी की है इस जो बी है वो मैगनैटिक फ्लक्स डेंसिटी नूं की कर रहा है रिप्रजेंट, मैगनैटिक फ्लक्स डेंसिटी नूं रिप्रजेंट कर रहा है। क्लीयर, यदि जो मैं डॉट प्रोडक्ट यदि जो मैं डॉट प्रोडक्ट की तो अपने को जीरो आ गया तो इसनों सोलेनोइडल वैक्टर कहते हैं। क्लीयर, ये होगी सैकेंड टाइप। नैक्सट है थर्ड। ये सारिया इंपॉर्टेंट ने क्योंकि डायरैक्ट क्वेश्चनस बनते हैं, तो कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आऊगा, तिने सिर्फ स्टेटमेंट बेसिस आएंगे। इररोटेशनल, इररोटेशनल वैक्टर फील्ड। हाँ जी, हुण इस दे विच की है जदों की है कोई भी वैक्टर फील्ड अपने को ई है लगा लो उदों जो मैं कर्ल कर दी हाँ वो जीरो आ जाए। ठीक है जी, जदों की है कर्ल करिए तो वह जीरो आ जाए तो उसनों आप की बोल दें इररोटेशनल। जे कोई अगर तो डॉट प्रोडक्ट जीरो है कोई स्केलर फील्ड की तो सोलेनोइडल। अगर क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी वैक्टर फील्ड की जीरो है
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਵੈਕਟਰ ਫੀਲਡ। ਕੌਣ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੈਕਟਰ ਫੀਲਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਦੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਦੇਤਾ 2z² y डिवाइडेड बाय x³ नेगेटिव है i कैप प्लस z² बाय x² j कैप प्लस 2yz बाय x² k कैप। ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਇਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਹੈ। क्वेश्चन है इरोटेशनल है या नहीं है। तो सब तो पहले तुसी इरोटेशनल शो करने के लिए की करोगे, इसका कर्ल करोगे और अगर तो जीरो आंदा है दैट मीनस यह की अपने को इरोटेशनल है। अगर जीरो नहीं आता तो यह अपने को की है, इरोटेशनल नहीं है। तो इरोटेशनल किद्दां करते हैं, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट ये की आनी चाहिए अपने को जीरो। इस तरीके नाल तुहानूं की आ सकता है, एक अद्धा MCQ आ सकता है। तो तुसी ये खुद सॉल्व करोगे और मैंने कमेंट सैक्शन दे विच इसका आंसर दसोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है अज दा कि यह जो मैं तुहानूं क्वेश्चन पाया ये इरोटेशनल है या नहीं है, और सॉल्व मैं एक तुहानूं करवा चुकी हूँ। क्लीयर है जी, उम्मीद है समझ आ चुकी है। इस तो बाद तुहाडे मेन जो टॉपिक रह गया वो रह गया थ्योरम्स। 2 थ्योरम्स रह गई, वो आपां हुणे डिस्कस कर लैंदे हां क्योंकि इस दे नाल तुहाडा फर्स्ट जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाऊगा। ठीक है जी, थ्योरम की अपने को गोस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम इंपॉर्टेंट ने, ये भी क्वेश्चन बने हुए हैं, तुहानूं पता ही होगा। अगर तुसी लास्ट मतलब प्रीवियस ईयर एग्जाम जो होए हैं वो उन्होंने पेपर देखा, क्वेश्चन पेपर देखा, तो तुहानूं ईजली पता लग जाऊगा कि ये चीज़ां आईयां होईयां ने एग्जाम च। ठीक है जी, सब तो पहली जो अपनी थ्योरम है वो की है, गोस थ्योरम, गोस डाइवर्जेंस थ्योरम। हुण इस दे विच की आंदा है, जो तुहानूं स्टेटमेंट दित्ती हुंदी है प्रॉपर, तुसीं फर्क देखना हुंदा है क्योंकि थोड़ी थोड़ी इंटैग्रल दा किते डाइवर्जेंस दा थोड़ा थोड़ा फर्क हुंदा है, जिस दे नाल ही की है एक अद्धी चीज़ अगर मिसिंग होई तो वो गलत हो जाता है। तो ये ध्यान नाल देखनी है। गोस डाइवर्जेंस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, थ्योरम दोनों इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली सारियां इंपॉर्टेंट हुंदियां ने जिन्नियां भी थ्योरम्स आंदियां। तो डाइवर्जेंस गोस डाइवर्जेंस थ्योरम की कहती है, कहते सरफेस इंटैग्रल ऑफ वैक्टर फील्ड ई दा जो सरफेस इंटैग्रल फील्ड लैंदे आ, सरफेस का लिता DS। ठीक है जी, इंटैग्रल फील्ड ई ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, तो आप क्लोज लगा देंगे, वो किस दे इक्वल हुंदा है, वॉल्यूम इंटैग्रल। वॉल्यूम लिए आप 3 लैंदे इंटैग्रल। ठीक है जी, V इत्थे S लिख लो, सरफेस इंटैग्रल। वॉल्यूम इंटैग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस का मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर E ओवर द वॉल्यूम इनक्लोज्ड। इनक्लोज का मतलब है आप हुण क्लोज नहीं किया, ये क्लोज से ये इनक्लोज नहीं किया, DV बाय अ गॉसियन सरफेस, कोई भी गॉसियन सरफेस से, तो इसनूं आपां की कह देंगे, गोस डाइवर्जेंस थ्योरम। इंपॉर्टेंट है, मैं तुहानूं इसकी डेरीवेशन भी करवा सकती हूँ, अगर तुसीं चाहो मैनू कमेंट सैक्शन दे विच दस दिओ तो आपां कर लांगे। अदरवाइज इसकी स्टेटमेंट ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लीयर, एक ही हो गया अपने को गोस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्लीयर, एक गल ध्यान रखनी है, इस दे विच ओवर मैं वैक्टर फील्ड क्या सी, क्योंकि कई बार ना वैक्टर फील्ड नहीं दिता हुंदा, या कई बार क्लोज इनक्लोज का फर्क हुंदा है, क्लोज इस साइड दे देंगे, इनक्लोज इस साइड। तो ये चीज़ां की है MCQ नूं बनाउण दे विच हैल्प करदियां और तुहानूं उलझाउण दे विच, तो उलझना नहीं हैगा, ध्यान नाल करना है। नैक्सट जो अपनी थ्योरम है वो है स्टोक्स थ्योरम। हुण देखो डाइवर्जेंस दे आपां दे विच किस दी गल कीती है, डॉट प्रोडक्ट दी नेम ही की सीगा, डाइवर्जेंस। स्टोक थ्योरम देखो हुण, स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम। सॉरी जो डिस्टर्बेंस हो रही है, तुहानूं भी पता फेस्टिवल्स का सीजन है तो उहदे लई सॉरी। ठीक है जी, स्टोक्स थ्योरम की है, इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटैग्रल
ऑफ अ वैक्टर ई लाइन इंटीग्रल का मतलब सिंगल क्लोज्ड ओवर अ क्लोज्ड कर्व लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू किस दे इक्वल होंगे सरफेस इंटैग्रल ऑफ कर्ल ई का मतलब आप क्रॉस प्रोडक्ट लवांगे ठीक है जी डॉट की आ गया अपने को डी एस वैक्टर उसनों आपां की कह दिंने स्टोक्स थ्योरम सरफेस की है बाउंडेड बाय अ कर्व सी तो उसनों आपां की कह दिंने स्टोक्स थ्योरम ये स्टोक्स थ्योरम की की अपने को स्टेटमेंट है और ये ही इंपॉर्टेंट है कई बार की है सिर्फ स्टेटमेंट्स ही आंदियां ने तो ध्यान दे विच रखना सॉरी इत्थे डी एल आऊगा क्योंकि आप लाइन इंटैग्रल कर रहे हैं तो इत्थे डी एल आऊगा वेट ये अपने को की है सरफेस इंटैग्रल 2 लई है लाइन इंटैग्रल सिंगल होंदी है वॉल्यूम दी ट्रिपल होंदी है मैं दस दिनी वेट आ क्लीयर हो चुकी होगी उम्मीद है स्टोक्स थ्योरम देखो लाइन इंटैग्रल सिंगल होंदा सरफेस इंटैग्रल 2 होंदे है वॉल्यूम इंटैग्रल 3 होंदे है अगर तक क्लोज्ड कह देन फिर तुसी इंटैग्रल के उपर सर्कल लगा देंगे हो अगर इनक्लोज या ओपन कह देन फिर तुसी सर्कल नहीं लगाओगे ठीक है जी ये चीज़ां ध्यान ये पता होनी चाहिए आप BSc कर लैंने इन्होंने चीज़ों क्लीयर हुण मैं दोबारा अपन तुहानूं दस दिंदी हां कि की फर्क सीगा इन्हां दे विच देखो एक साइड आप लिखते हैं गोस थ्योरम एक साइड आप लिखते हैं स्टोक्स थ्योरम क्लीयर गोस थ्योरम ते स्टोक्स थ्योरम गोस थ्योरम दे विच की सी सरफेस इंटैग्रल ओवर अ क्लोज्ड सरफेस ई डॉट डी एस क्लीयर नाल की सीगा वॉल्यूम इंटैग्रल डेल डॉट ई डाइवर्जेंस ऑफ ई वैक्टर इस तरीके नाल जो स्टोक्स थ्योरम सीगी इस दे विच की सी लाइन इंटैग्रल ओवर अ क्लोज्ड सरफेस एंड नाल की सी सरफेस इंटैग्रल ओवर इनक्लोज्ड नाल की लिखता होया सी उसदा कर्ल लिखता होया सी इस तरीके नाल सी अपने को टीएस क्लीयर तो हुण देखो जो तो अपने को स्टोक्स थ्योरम है इस दे विच अपने को की आ जाती है लाइन इंटैग्रल एंड दूसरी साइड की अपने को सरफेस इंटैग्रल क्लोज टू ओपन गोस दे विच भी की अपने को क्लोज टू ओपन बट की है सरफेस टू आपां किधर गए वॉल्यूम वन इस दे विच गोस दे विच डाइवर्जेंस है तो आपां ने की लिती हुई है डॉट प्रोडक्ट वॉल्यूम दे विच स्टॉक्स दे विच की अपने को की आ जाता है कर्ल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट आ जाती है ये दो तीन चीज़ें हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं देखो डेरीवेशनस भी हैं दियाँ बट आपां नूं MCQs आने तो डेरीवेशन करन दा कोई बंदा नहीं बट अगर तुसी कहोगे तो मैं डेरीवेशनस नैक्सट क्लास दे विच तुहानूं करवा दूँगी क्लीयर उम्मीद है जिन्ना मैं तुहानूं अज करवाया ये क्लीयर हो चुके हुण एक दो मैं छोटे छोटे पॉइंट दसदी हाँ जो तुसी डायरैक्ट नोट कर सकते हो ये MCQs आ जाते हैं देखो अगर मैं डाइवर्जेंस कर दी हाँ किसी भी कर्ल का डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी ग्रेडियंट जो कोई भी आप ग्रेडियंट लै सकते यू लै सकते तुसी ठीक है वो की हुंदा जीरो जिद्दां डेल डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट कर्ल किसी का भी डेल क्रॉस ए लै लो ई लै लो तो वह अपने को आऊगा जीरो आऊगा एक तो ए पॉइंट ध्यान च रखना है तुसी इंपॉर्टेंट है सैकेंड वन तुसी ध्यान दे विच रखना है अगर मैं कर्ल लैनी हाँ किस दा कर्ल लैनी हाँ कोई ग्रेडियंट का मतलब डेल डॉट यू डॉट प्रोडक्ट दे विच है तो यह भी कि इक्वल होंगे अपने को जीरो ये दो तुसी पॉइंट याद रखोगे जो मैं तुहानूं कर्ल ते डाइवर्जेंस सॉल्व करवाया वो तुसी एक एग्जाम्पल लैके सॉल्व कर सकते हो एक तुहानूं मैं क्वेश्चन दिता है तुसी मैनूं कमेंट सैक्शन दे विच दसोगे कि उसका वो इरोटेशनल है या नहीं है ठीक है इन्हां चीज़ों को तुसी अज करना है तुहाडा जो फर्स्ट टॉपिक है कैलकुलस ऑफ वैक्टर्स इलैक्ट्रिसिटी एंड मैगनेटिज्म का जो पार्ट ए है कैलकुलस ऑफ वैक्टर्स वो की हो चुका थोड़ा कंप्लीट एक वीडियो के आप कंप्लीट कर लिया मतलब पार्ट 1 हो गया इस वीडियो के तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के नाल जो भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लीयर फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्रिपरेशन करवा रहे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हो प्रॉपर वे दे नाल प्रिपरेशन अपनी एग्जाम की कर सकते हैं कोई भी डाउट है तुसी कमेंट सैक्शन दे विच पूछ सकते हो क्लीयर कर सकते हो अपना डाउट तो मैक्सीमम शेयर करो अपने फ्रेंड्स के नाल
क्लीयर। जो चैनल ते न्यू है वो चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣ ਐਂਡ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈंने ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ। ਵੇਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਏ ਵੈਕਟਰ ਗਿਵਨ ਹੈ 5y² z² i cap plus 3x² z² j cap minus 3x² y² k cap। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਲੇਨੋਇਡਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਲੇਨੋਇਡਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਲੇਨੋਇਡਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸੋਲੇਨੋਇਡਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।